درد جتنا دینا ہے ہم ہر درد سہنا جانتے ہیں. گرا دے ہمیں ہم گر کر سنبھلنا جانتے ہیں. تیرا وقت ہے اس لیے تیری قدر کرتے ہیں, ورنہ تجھ جیسوں کو اپنے انگلیوں کے اشارے پہ نچانا خوب جانتے ہیں. تو آئیے اپنی ایمان سے شہر اورنگ آباد کے اس تاریخ ساز انقلابی انتخابی جلسے میں ہمارے اور آپ کے محبوب نظر خادم ملت اورنگ آباد سینٹرل کے گلی گلی کوچے کوچے میں اپنی خدمات کا ثبوت دینے والے لیڈر جناب بھائی ناصر صدیقی صاحب, حیدرآباد سے تشریف فرما کارپوریٹر جناب بھائی ابرار صاحب, بہار کے یوتھ پریزیڈنٹ جناب بھائی عادل حسن ایڈوکیٹ صاحب, جناب بھائی رفعت یار خان صاحب, وکاس ارکے بھائی, بھائی امتیاز صاحب, غریبوں مظلوموں کی مدد کرنے میں ایک جواسال قائد عزیزی سلمان ذمہ دار ایچ اور آج کے محفل کی بہترین نظامت کر رہے موبائن بھائی, یہاں پر موجود انقلابی نوجوانوں, ملت کے غیور فرزندوں, معزز ترین علماء کرام, میرے مسلم اور غیر مسلم بھائیوں, میری نیک ترین ماں بہنوں بیٹیوں اور میڈیا کے اچھے ساتھیوں, وقت قلیل ہے اور آپ کا یہ طوفانی جلسہ اس بات کا بین ثبوت ہے کہ اورنگ آباد کی اس دھرتی میں آپ نے اپنی قیادت کو کھڑی کرنے کے لیے ارادہ مصمم کر لیا ہے اور آپ کا فیصلہ انشاءاللہ العزیز کامیاب ہوگا. ہم اس کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں. میرے بھائیوں, ایک لمبے عرصے کے بعد اس حلقے میں ایک قیادت ابھر کر سامنے آئی جسے آپ نے امتیاز جلیل کی حیثیت سے جانا. اورنگ آباد ضرور مشہور و معروف ہے, لیکن از سر نو اس کو شہرت ملی جب امتیاز جلیل صاحب کو آپ لوگوں نے یہاں سے ایم ایل اے اور ایم پی بنا کر بھیجا اور انہوں نے بڑی جرأت مندی کے ساتھ اپنی ذمہ دارانہ قیادت کا ثبوت دیا. میرے بھائیوں, اس وقت میں بہار سے چل کر یہاں آیا ہوں. میرے ذاتی کوئی اغراض نہیں ہے, بلکہ پارٹی کا ایک سپاہی اور ملت کے فرد کی حیثیت سے آپ سے فریاد کرنے کے لیے آیا ہوں کہ اس وقت الیکشن کئی جگہوں پہ ہو رہے ہیں. جھارکھنڈ میں الیکشن ہو رہا ہے, مہاراشٹر میں الیکشن ہو رہا ہے, بہار کے چند مقامات پر بائی الیکشنز ہو رہے ہیں, لیکن اس بات کو آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں کہ پورے ہندوستان بھر کے مسلمان, وہ وطن عزیز میں ہو یا وطن عزیز سے باہر ہو, ان کی نظریں اگر کہیں لگی ہیں, کہیں ان کی نظریں ٹکی ہیں تو وہ شہر اورنگ آباد کی طرف ٹکی ہیں اور ایم آئی ایم کے امیدواروں کو جیتنے کی دعائیں مانگ رہے ہیں. میرے بھائیوں, اس وقت ناصر صدیقی صاحب آپ کے امیدوار ہیں اور میں نے ابھی بھی طوفانی ایک جلسے کو خطاب کیا ہے بھائی امتیاز جلیل کے حلقے میں. وہاں بھی لوگوں کی جو بھیڑ اور جنم غفور دیکھی ہے, نوجوانوں کے جوش اور جذبے کو دیکھا ہے, معزز علماء کرام کو ہم نے دیکھا ہے, تو یقیناً ہے کہ تاریخ ساز کامیابی آپ کے شہر میں ان دونوں سیٹوں پر ہم کو ملنے جا رہی ہے. میرے بھائیوں, ایک لفظ اور بار آپ ایم ایل اے ایم پی بناتے تو آپ حکومت کا خواب دیکھتے, اور ہمارے بزرگوں نے بیشتر اوقات یہی کہا کہ حکومت کس کی بنتی ہے ہم اسے ووٹ ڈالیں گے, اور تاریخ شاہد ہے کہ ان 77 سالوں میں بیشتر اوقات کانگریس کی حکومت رہی اور کانگریس نے کیا دیا اور کیا لیا ہے اس کا محاسبہ کرنے کا وقت ہے. آپ گواہ ہیں اس بات کے کہ اس ملک میں بابری مسجد کی پاکیزہ ممبر اور محراب کے قریب مورتی بٹھا کر اگر ہندو مسلمانوں کے درمیان میں دیوار پیدا کی اور مسلمانوں کے اس عبادت خانے کو توڑوانے کا کسی نے وسیلہ بنایا تو اس کا نام کانگریس ہے. دفعہ 341 میں ایس سی اور ایس ٹی کے جو مراعات ملنے تھے, مسلمانوں کو محروم کرنے والی پارٹی کا نام کانگریس ہے. اور یہی نہیں بلکہ مسلمان بے شمار فسادات میں بھی آپ نے جن کی حکومت بنائی اس نے آپ کی گردنیں کاٹی ہے. یہ وقت طویل نہیں ہے کہ میں آپ سے طویل گفتگو کروں, صرف یہ کہوں کہ آپ نے, ہمارے بزرگوں نے یہ کہا حکومت بنانی ہے, اور جب آپ روٹ گئے, جب آپ ناراض ہو گئے, جب گجرات میں ماؤ بہنوں, گودھرا میں ماؤ بہنوں کی آبرو کی چیخ آپ کے کانوں نے سنی,
इसमत लुटती हुई तस्वीर आपने देखी, बहन बिल्किस की आहो फगा आपने सुनी, तो यकीनन फिर आपने चाहा तो तख्त बदल दिया और बीजेपी को नीचे गिरा दिया। मेरे भाइयों, अगर आपके वोट में ताकत हुकूमतों बनाने की है और हुकूमतों को गिरा देने की है, तो खुदा की कसम आपके वोट में ताकत अपनी नस्लों और अपनी तकदीर को संवारने की है। मैं आपको ये कहने के लिए आया हूँ कि आप अपने वोट की अहमियत को समझिए। जमहूरियत में जो सबसे बड़ा हथियार है वो आपका वोट है। वोट नहीं है, तलवार है। ये तलवार सिपाही को अगर आपने दिया तो वो आपकी गर्दनों की, आपके घर के इस्मत और आबरू की, आपके माल और जायदाद की तहफ़्फ़ुज़ करेगा। और अगर आपने गलती से ये शमशीर किसी जालिम को दे दिया, किसी कातिल को दे दिया, तो तलवार भी आपकी होगी, गर्दनें भी आपकी काटी जाएंगी। फैसला आपको करना है कि अपनी तलवार किसे देनी है। क़यादत 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 का लफ्ज़ आप सुनते होंगे, ये औरों के यहाँ नहीं सुनते होंगे। ये लफ्ज़ क़यादत का पाकीज़ा जुमला अगर कोई इस्तेमाल करता है तो ये मजलिस के लोग भी करते हैं। नौजवानों, क़यादत क्या है मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। हमारे बुजुर्ग समझदार हैं कि तुम्हारे गाँव का एक पहलवान है, उसका नाम अब्दुल पहलवान है। खड़ा होता है तो लगता पहाड़ है, जहाँ रुक जाता है भीड़ हो जाती है। इत्तेफाक से उसके दोनों जानू हादसे में कट गए। और तुम्हारे गांव का पहलवान है, कहते हो कि बड़ा पहलवान था, लेकिन पाँव कट गए जिसके पाँव के वजन 30 किलो थे। लेकिन अब क्या हो गया, अब्दुल पहलवान लंगड़ा हो गया, लेकिन अब्दुल तो है ना। दोनों बाजू जिनके वजन 20 किलो उनके थे कट गए। अब्दुल लूला हो गया, लेकिन अब्दुल है ना। लेकिन ये फर्ज करो कि अगर अब्दुल की गर्दन कट जाए तो क्या अब्दुल है? गर्दन की वजन कितनी? 4 किलो 5 किलो, बहुत सेहतमंद है। तो 30 किलो का के जानू कट गए, अब्दुल था। 20 किलो के बाजू कट गए, अब्दुल था। लेकिन 4 किलो की गर्दन कट गई तो कहते हो अब्दुल नहीं है। क्या कहते हो? अब्दुल की क्या कहते हो? अब्दुल की लाश है। यानी कि जिस जिस्म में सर नहीं है वो लाश है। क़यादत इसी को कहते हैं नौजवानों। जिस कौम का कोई सरदार और अमीर नहीं हो वो भी मानिंदे लाश है। तुम अपने आप को गर्दन कटी हुई उस लाश की तरह रखना चाहते हो या अपने दस्तों बाजू को कटाकर अपनी गर्दनों की हिफाजत करना चाहते हो? यकीन जानो, हर गैरतमंद ये चाहेगा कि मेरे दस्तों बाजू कट जाए लेकिन मेरी गर्दन न कटे। गर्दनों का नाम ही क़यादत है और उसी का नाम सरदारी है। मैं यहाँ मजहबी हल्के के लोगों को देखता हूँ, मेरी तबीयत चाहती है कि अपने अफकार की तहरीर के लिए मैं वाक़या पेश करूँ। मेरे भाई और बुजुर्गों, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा 63 साल की, 40 साल जिंदगी जो ऐलान नबूवत से कबल की जिंदगी थी। ऐसा मासूम बचपन, ऐसा निराला लड़कपन और ऐसी बेदाग जवानी अरब की सरजमीन ने नहीं देखी। लेकिन 13 साल ऐलान नबूवत के बाद 13 साल आपने मक्का की गलियों में दावत दी, दावतें बामुशक्कत दी, गालियां सुनी, इस्तेज़ा बर्दाश्त की, सोशल बाइकआउट बर्दाश्त किया, रिश्ते टूटे, जिस्म लहूलुहान हुआ। लेकिन जानते हो कितने लोग कलमा पढ़ने वाले थे? 13 साल की तवील मुद्दत के बाद हिजरत करते हुए वक्त 178 लोग साथ थे और चंद नफूस थे जो मक्के में रह गए थे। लेकिन वही नबी रहमत जब मदीना पहुंचे तो 2 साल के अंदर में जंग बदर और फिर 8 साल के अंदर में फतह मक्का किया। जरा गौर तो करो, मक्की और मदरी जिंदगी में फर्क क्या था? मक्की जिंदगी और मदरी जिंदगी में फर्क बुनियादी तौर पर यह था कि मक्के में दावत थी लेकिन दावत को कुव्वत नहीं थी, और जब मदीना पहुंच गए तो दावत भी थी, अपनी जमात भी थी, अपनी कुव्वत भी थी। न हो अगर कुव्वत नाफिजा तो इस्लाम भी फकत एक फलसफा है। कुव्वत का हुसूल हमारे ईमान का हिस्सा है। चूंकि बुराइयों को रोकना, नेकियों को फैलाना हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है, इसलिए मस्जिद और मिंबर के मेहराब की हिफाजत भी करनी हमारी जिम्मेदारी है और अपनी क़यादत की जिम्मेदारी भी हमको हिफाजत करने की जिम्मेदारी है। नौजवानों, तुम जानते हो बाबरी मस्जिद के कितने सुतून होंगे? 70 सुतून होंगे। तुमने टूटे तो तुम आज तक रो रहे हो, लेकिन जान रहे हो पार्लियामेंट में तुम्हारे 15% हिंदुस्तान के मुसलमानों की तादाद 543 रुकनी लोकसभा में कितनी होनी चाहिए थी? 80-84 होनी चाहिए थी। लेकिन तुम्हारे 80-84 सुकून टूट गए, 20-22 भी बचे हैं तो इसमें बेशतर को घुन पकड़ लिया है। अगर कोई तुम्हारी तवानाई के साथ तुम्हारी वकालत करता है तो उसका नाम कोई ऐरा गैरा नहीं है, उसका नाम फेरिस असदुद्दीन अवैसी है। अपनी महफिल में संजीदगी अख्तियार रखो नौजवानों। तुम्हारे महफिल की सबसे बड़ी जो कदर मंजरत रही है वो तुम्हारे महफिल की संजीदगी रही है। मैं तुमको बता रहा हूँ एक अजीम वाक़या बता रहा हूँ नौजवानों, कि तुम गौर करो कि किस चीज ने इस मुल्क में, जिस वक्त इस मुल्क में लाल किला का पत्थर पुकार कर तुमसे कह रहा है, ताज का वो चमकता हुआ पत्थर तुम्हें कह रहा है
और वो कुतुब मीनार की बुलंदी पुकार पुकार कर औरंगाबाद के लोगों, औरंगाबाद के उस पीर फकीर जैसे बादशाह के मजार से आवाज आ रही है कि औरंगाबाद के लोगों तुम इतने बोझिल क्यों हो गए हो, तुम अपनी कमी पे क्यों मजाज हो रहे हो? अरे सोना हमें से कम रहा है, कोयला हमें से ज्यादा रहा है, लेकिन कोयले की कीमत कभी भी सोना से ज्यादा नहीं रही है। कल तो लगभग तैमूर के जमाने में इस मुल्क में जो तुम बादशाह थे तुम्हारी तादाद बहुत ज्यादा नहीं थी, बल्कि आज से कम थी, 5 से 7% थे तो इस मुल्क में बादशाह थे। आज तो इस मुल्क में तुम 15 से 17% हो, तुम्हारे सीने में खौफ तारी हो गया है। आओ अपनी सफों की दरार को खत्म करो, अपने मिल्लत में इत्तेहाद को बर्ता करो और इस मुल्क की सालमियत के लिए, इस मुल्क में शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इस मुल्क में बेटी की पर्दों की हिफाजत के लिए अपनी क़यादत को खड़ी करो। तो मैं मालूम है नौजवानों, इस वक्त महाराष्ट्र के असेंबली में तुम्हारे कितने लोग होने चाहिए? 188 का की असेंबली है ना, 288 की, तुम्हारे 100 में 12 तो 24, 88 में भी 10, तो कितने होने चाहिए? 34। और कितने हैं? सिर्फ 9। और 9 में कितनों की आवाज सुनते हो? लेकिन जब उसी ऐवान में MIM के लोग गरजते और बरसते रहे, और बिलखुसूस आपके शहर में का जो लीडर जिसे आप इम्तियाज जलील नाम से जानते हैं, जब असेंबली में था तुम्हारा सीना चौड़ा हो रहा था कि नहीं हो रहा था? ईमानदारी से बोलो, 2014 से कबल MIM बाहर नहीं निकली थी। आज वो लोग, जो लोग हमारी पार्टियों को बीजेपी की बी टीम होने का ऐसे जलील और कमीने लोग, जरा सा पूछो उनसे कि 2014 से पहले भी देख लो, पूरे मुल्क में आतंकवाद का एक बेजा इल्जाम नौजवानों पर तारी था, गाड़ियां नोची जा रही थी, लोगों को जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर हमारे नौजवानों की मॉब लिंचिंग हुई। हर मुसलमान खौफ के समंदर में था। मजहबी लोगों ने भी मसलियत की चादर ओढ़ ली थी और सियासी लोगों ने भी अपनी मुफाहमत कर ली थी। लेकिन जानो, पूरी कौम, पूरा नौजवान खौफ से अपनी गर्दनें झुका चुका था। और ऐसे वक्त में अगर कौम को किसी ने एहसास कमतरी के समंदर में गर्क होने से बचाने का काम किया, उसका नाम कोई और नहीं, उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है। मेरे नौजवानों बोलो, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को जब पार्लियामेंट में बात करते हुए देखते हो, टीवी के मुआवजे में देखते हो, तुम्हारा सीना चौड़ा होता है कि नहीं? बोलो, चौड़ा होता है? तुम्हारी गर्दनें ऊंची होती कि नहीं होती है? तो आखिर जानते हो, आए को वोट दोगे तो कौन होगा? कांग्रेस मजबूत होगी, बीजेपी मजबूत होगी, ठाकरे मजबूत होगा, और कौन होगा? गद्दार वतन, मिल्लत का गद्दार जो लोग हैं वहां पर अखिलेश की चौकीदारी करते हैं, ऐसे लोगों की ताकत होगी। और जब MIM को वोट दोगे तो कौन मजबूत होगा? बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी मजबूत होगा। तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को मजबूत करना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? अपनी क़यादत को बाकी रखना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? अरे यारो, ये खामोश मुजाहिद तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो जरा कोहराम मचा दो। अवैसी को ताकत चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर अवैसी को ताकत चाहिए तो तुम्हें आपस के इत्तेहाद को और मजबूत बनानी होगी। इस वक्त बहुत सारी अफवाहें फैली हैं, और मैंने एक बात अभी कही है, यह अल्लाह का करम है, उलमा की नूरानी पेशानियों को मैं देख रहा हूँ, और जाहिर है मैं दीन की तफहीम और तौज़ीह नहीं कर सकता, लेकिन जो कुछ आपके कदमों में बैठकर मैंने सीखा है, मैं चाहता हूँ उसकी तफहीर हो जाए। आप ये बताइए कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना पहुंचे थे तो वहां लोग खजूर की दरख्तों में खुशकाज कपड़े बांधते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, या क्या करते हो? तो लोगों ने छोड़ दिया, लेकिन इत्तेफाक से उस बार खजूर की फसलें कम आई, और साहबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह, हमने ये अमल छोड़ दिया तो कहीं इसकी वजह से फसल में कमी नहीं आई? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ज़राअत के बारे में तुम ज्यादा बेहतर जानते हो। मेरे भाइयों, हर एक शख्स का मैदान होता है, यहाँ कोई फ़िक़्ह का मसला हो, दीनी मसाइल हो, तो हम अपने उलमा, अपने अकाबरीन, मुस्लिम पर्सनल का मामला हो तो उनके फतवे का हम इंतज़ार करते हैं। चांद की तारीखों के लिए, ईदैन की नमाज के लिए उनके फैसले के बगैर हम कदम नहीं उठाते हैं। यकीनन है कि उसका वो मकाम है कि हम उसकी पैरवी करें, लेकिन मैदान सियासत का सवाल तो उस वक्त बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है। यकीन जानो, अपने अमीर की अताअत हम पर फर्ज है। इस वक्त कोई खलीफतुल मुस्लिमीन नहीं है कि किसी एक का फैसला सादिर होगा। इस वक्त हमारी दीनी तंजीमें हैं, उनका अपना वकार है, उनकी इज्जत और नामोज के लिए हम अपनी गर्दन कटाने के लिए तैयार हैं। लेकिन सियासत में बरसों के बाद हमारा एक शेख सवार आया है, हम उसको आज आने नहीं देंगे, और उसकी क़यादत के लिए अगर गर्दन भी कटानी पड़ेगी तो तैयार रहेंगे। वो नेता हमारा बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है। मेरे भाइयों, आज मैं चौथी बार MLA हूँ बिहार में, और मैं आपको बता दूं कि मैं 3 बार राजद से MLA रहा।
लेकिन वो तवानाई मुझे नसीब नहीं थी। जब बोलना चाहता था तो बहुत सारे मसाइल में बोलने की इजाजत नहीं मिलती थी। 2012 में एक तुगलकी फरमान आया बिहार में कि साहब सारे बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले सारे बच्चों को सूर्य नमस्कार करना पड़ेगा। उलमा की मीटिंगें चल रही थी, जलसे हो रहे थे, रजा जी असर नहीं पड़ा था। यही खादिम था और असेंबली में हमने आवाज लगाई कि ये बिहार देश के बनाए हुए संविधान पर चलेगा कि नागपुर के कानून पर चलेगा। बीजेपी के लोगों ने मेरे गिरबान को पकड़ने की कोशिश की, मुझे पाकिस्तानी और जिन्ना का समर्थक कहा, लेकिन अल्लाह ने सियासत को ताकत दी है कि जो फैसला पिछले 3 महीने से वापस नहीं हो रहा था, मेरी आवाज उठाने से 3 दिनों में उस फैसले को वापस लेना पड़ा। ये ताकत होती है। अरे तालियां ऐसी बजाओ कि बीजेपी के और उन दोगली जमातों के गाल लाल हो जाए, ताली को ताल कर दो। ये बादलों की तालियां, ये होती है तवानाई, ये होती है ताकत। मेरे भाइयों, इस वक्त हम आपसे गुजारिश करने के लिए आए हैं। क़यादत हमारा खोया हुआ सरमाया है और हिकमत मुसलमानों की खोई हुई पूंजी है। मेरे भाइयों, अपने सफों के दरार को खत्म कीजिए और इस वक्त निकल जाइए कई दिनों के लिए। जालिम लोगों के, रिश्वतखोरों के अगर पैसे बटे तो पैसे ले लेना, मत छोड़ना उनको, पेशाब और पाखाने के घर बना देना। लेकिन यकीन जानो कि अगर कोई औरत पैसे की वजह से जिस्म बेचती है तो वो तवायफ कहलाती है, और जो पैसे के खातिर ओट बेचे तो वो 70 तवायफों से भी ज्यादा मुजरिम होता है जो अपने जमीन का सौदा करता है। गैरतमंद लोगों, कभी भी अपने जमीन का सौदा मत होने देना और अपनी क़यादत को खड़ी करने के लिए बाजी लगा देना। हुकूमत तुमने बहुत बनाई है, मैं देख रहा हूँ, हुकूमत तुमने बहुत बनाई है, अब हुकूमतों के बनाने का नहीं, अपनी क़यादत को संभालने का वक्त है। आप अपनी क़यादत को तैयार करेंगे, इनकलाब लाएंगे तो मैं कुछ नारे लगा दूं, इजाजत है। और इनकलाब कैसे आता है? बैठ के नहीं आएगा इनकलाब, कैसे आएगा? उठ के इनकलाब, इनकलाब, इनकलाब। इनकलाबी नौजवानों, फलक सगाफ लफ्ज़ सुना है तुमने? फलक सगाफ के माने होते हैं आसमान को फोड़ देने वाला। आओ नारे लगाओ कि इनकलाब, इनकलाब, नासिर सिद्दीकी, नासिर सिद्दीकी। मैं यहाँ फसल कर रहा हूँ, बिहार की हमारे में नारा दिया है, मेरा साथ दो। मैं जो जुमले कहूँ वो जुमले दोहराओ, आओ मेरा साथ दो। मैं कह रहा हूँ, सबको दिया है हमने वोट, सबको दिया है हमने वोट, सबने दिया है हमको चोट। अच्छा, चोट खाया हुआ जब बिल्ली गुस्से में आके नोच लेती है और शेर जब घायल होता है तो कहा आता है चोट के बाद भी आवाज, सबने दिया है हमको चोट, सबने दिया है हमको चोट, अब न देंगे इन बेईमानों को वोट। अब अपनी पार्टी अपना वोट, अपनी पार्टी अपना वोट। इनकलाब, औरंगाबाद के नौजवान भाई नासिर सिद्दीकी, बहुत बहुत शुक्रिया। सलाम।